Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Okay, I'm going to. Okay, good afternoon to all. I'm going to continue with the problem that we were discussing on last Friday, I suppose. Okay, so the number of links, as you know, in this case, n is equivalent to 6. Therefore, the number of eye centers will be 6 into 5 by 2. That is equivalent to 15. Out of 15 eye centers, how many eye centers were located through visual inspection? 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. एक मिनट, स्क्रीन फंस गया मेरा. So, out of 15 eye centers, 7 eye centers were located through visual inspection, and those that has been located through visual inspection are drawn in blue line, blue form line. Now, what is our intention? Our intention is to find out the velocity of the link AB, velocity of BC and D, and the angular velocities of AB, BC, and CD. Okay. ये हमने ज्वाइन कर लिया था पहली बार. We had joined 1 to 3. ये डिस्कस कर लिया था कि नहीं? चलो फोर कोई नहीं. Yes, sir. Yes, sir. When we are joining 1 to 3, the figure 1, 2, 3, 4 is split into two triangles, 1, 2, 3, and 1, 3, 4, with 1, 3 being the common side. 1, 2. The sides of the first triangle are 1, 2, and 2, 3. So if there is a third eye center, this eye center will be known as I2, 3. I2, 3. If there is a third eye center, it should be on the same straight line. This is 1, 3, 2, 3. And if there is a third eye center, it should be on the same straight line. Okay, the another triangle was 1, 3, 4. कौन-कौन से हमें मालूम थे? 1, 4 पता था और 3, 4 पता था. So if there is the third eye center, it should be on the same straight line. The intersection of this will define the position of I1, 3. Now, since you are knowing the velocity of this point, you can write velocity of A divided by I1, 3. A distance will be equivalent to velocity of point B divided by I1, 3B distance. Okay, therefore, velocity of B will be velocity of A divided by I1, 3A. This is the distance. जिस स्केल पे भी बनाओगे उसको कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई करके into I1, 3B. You will get the velocity of the point B. Now, again, coming back to this, we have joined this to this. Now in the second go, if you join the point 2 with the point 4, the figure 1, 2, 3, 4 is split again into two triangles. The triangles are 1, 2, 4 and 2, 3, 4. Let's talk about the triangle 1, 2, 4. 1, 2, 4 और ये जो eye center होगा, this will be your eye center I2, 4. With कौन-कौन से sides हो गए मेरे पास? 1, 2 and 1, 4. 1, 2, 1, 4. बेटा आप नोट करके रख लो क्योंकि मैं बार-बार स्क्रीन ऊपर नीचे करता हूँ ना, थोड़ी पर टाइम लग जाता है. अब we are looking at two triangles 1, 2, 1, 4. The sides are 1, 2, 1, 4 और दूसरे का 2, 3, 3, 4. Okay. पहला क्या था? 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. This is 1, 2. Okay. This is 1, 4. So if there is a third eye center, मेरे ख्याल से 2, 4 था ना, that should be on the same straight line. Okay, इस लाइन को आप चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको दिख रहा है. और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना था? 2, 3, 3, 4. 2, 3, 4.
2 3 4 यानी कि 2 3 and 3 4. Where is 2 3? This is 2 3 and this is 3 4. So if there is a third eye center, it will be on the same straight line. इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट आ गया that is I24. आपने आई सेंटर जरूर लोकेट कर लिया. पहले आपने 7 लोकेट किया था, ठीक है. ये 8वां हो गया था आपका, ये आपका 9वां आई सेंटर हो गया. बट राइट नाउ इट्स ऑफ नो यूज टू मी. ओके, ये ऊपर वाला डायग्राम पूरा हो गया. हमने 2 3 भी ज्वाइन कर लिया, हमने Yes, ये भी sir. ज्वाइन कर लिया. नाउ लेट्स कम टू द लोअर पार्ट ऑफ दिस फिगर, दैट इज 1 4 5 6. वी आर जॉइनिंग 1 2 5. वी आर जॉइनिंग 1 2 5. लिखो दो ट्राइंगल जो बन रहा है, द ट्राइंगल्स आर 1 5 6 and the second triangle is 1 4 5. Okay, written. Yes, sir. मेरे को ट्राइंगल बताना कौन कौन सा. हाँ, कौन कौन सा था मेरा पहला ट्राइंगल? क्या था? 165. 165. 165 यानी कि मेरे को सेंटर चाहिए 16 और 65. 65. This is between 5 6 और 1 6. ओके, यही है ना? यही तो पॉइंट है ना? Yes, sir. 1 6 is at infinity, so if there is a third eye center, 5 6 here, if there is a third eye center, it should be on the same straight line. दूसरा ट्राइंगल कौन सा बना था? 1 4. 1 4 5. तो साइड्स इसके कौन कौन से थे? 1 4. 1 4 4 5. This is 1 4. This is 4 5. So if there is a third eye center, it should be on the same straight line. Intersect कर लिया यहाँ पे. Okay. Yes, sir. अब आप ये वाला जो आई सेंटर है, दिस इज द आई सेंटर नंबर 10 जो आपने अभी तक लोकेट किया है, ठीक है. रिमेंबर देयर वर 15 आई सेंटर्स. ओके, आपने सिर्फ अभी 10 लोकेट किए हैं. नाउ व्हेन यू लुक एट द आई सेंटर I15 व्हाट आई एंड if I talk about the link number 5, this is the one extreme end of the link number 5 and this is the another extreme end of the link number 5. And when you look at the eye center I15, it is covering the extreme ends of this particular link. Yes, sir. So for this link, can I write velocity of C, that is this point, divided by I15C will be equivalent to, ये इस पॉइंट को इसने क्या नाम दिया? मान लो मैं इसको x दे देता हूँ. हाँ, ये स्लाइडर है, ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, इस पॉइंट के ब्रैकेट में x लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई I15x. Okay, from here I can get the velocity of the slider, but the thing is I don't right now I don't know the velocity of point C, but I know the velocity of point B. Velocity of point B मुझे यहाँ से पता है. Now when you look at the link number 4, what you find, it is pivoted over here. The link CB or the link number 4 is a single link, and this whole link, that is the link number 4 or the complete link CB, is rotating at about this point also. So in terms of eye centers, can I write velocity of B divided by I14B, I14 at distance B is equivalent to velocity of C divided by I14C. लिख सकता हूं क्योंकि ये भी एंगुलर वेलोसिटी इस लिंक का बता रहा है, एंड दिस रेशियो इज आल्सो गिविंग यू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक, isn't it? Yes, sir. Therefore, from this I can get velocity of C is equal to velocity of B, जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस I14B multiplied by the distance I14C. You will get the velocity of point C. Yes, sir. एक मेरे से B का वेलोसिटी पूछा था, एक C का पूछा था और एक D का पूछा था मेरे ख्याल से. एक वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D पूछा था. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D पूछा, इट मींस इज आस्किंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, या वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जो भी बोला होगा. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन
you know the velocity of this particular point, okay? And this eye center is covering the whole link number 5. The slider is at the end of this link number 5, और ये पूरे extreme को cover कर रहा है. It is covering the extreme ends. So can I use this formula? Therefore, velocity of slider will be velocity of C divided by I15C, I15 into C, ये जो distance होगा, into I15, और इसको अगर आपने X नाम दिया है, X. आपसे क्या क्या चीजें पूछी थी देखो. Velocity of B, you have found out the velocity of B, velocity of C निकाल लिया, velocity of D कह रहा है, इस पॉइंट को ये D कह रहा है. सिर्फ 10 आई सेंटर्स में आपने ये तीनों चीजें निकालनी है. जब ये तीनों चीजें निकालनी तो ये तीन चीज तो अपने आप निकल गई. आपसे क्या क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा ए बी पूछा है, ओमेगा बी सी एंड ओमेगा सी डी. क्या क्या पूछा था आपसे? एक मिनट. ओमेगा ए बी, ओमेगा बी सी, ओमेगा सी डी. ओमेगा ए बी, ओमेगा बी सी, ओमेगा सी डी. ओमेगा ए बी, व्हाट इज दिस? ओमेगा ए बी, ए और बी का ये कौन सा है? तो जब आपने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी निकाला तो दिस रेशियो इज गिविंग यू द एंगुलर वेलोसिटी. ये चीज जो है आपको ओमेगा ए बी इज नथिंग बट फ्रॉम दिस आई एम ड्रॉपिंग इट ओवर हियर. दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय I13 ए. ओमेगा बी सी क्या है? ये है. इसके लिए आपने अभी ये इक्वेशन यूज किया था, VC upon I14C या VB upon I14B will give you omega BC. Omega CD इससे मिल जाएगा वो from this particular equation. So there is no fun in locating all the eye centers. एक आध हो सकता है कि आप एक आध फालतू या दो भी फालतू कर सकते हैं, but the thing that you need to keep in your mind is that always try to locate an eye center which covers the extreme end of a particular link. Okay? Is it clear? Yes sir. उसने भी यही किया है ना. करता हूं. ये चीजें वही इस्तेमाल की हैं, ये और ये. So 15 आई सेंटर्स में we have used only 10 eye centers to reach the solution. Clear? 15 के 15 आई सेंटर लोकेट करने की जरूरत ही नहीं है. Done? Any doubt? No sir. Okay. Now come to this problem. The mechanism of a wrapping machine is shown in figure number this has the following dimensions. O1A AC, O1A AC, BC, O3C, O2E, O2D, BD. The crank O1A rotates at a uniform speed of 100 radians per second. Find the velocity of the point E. You have to find out the velocity of this point on the bell crank lever by eye center method. So the first question that comes in mind is number of eye centers. What is the value of a small n? And accordingly, what is the value of capital N? सर लिंक 6 है क्या? यार पूछो नहीं, जवाब दो. You are asking me. 6 आप जो पूछ रहे हो ना I think 6 sir.
थिंक नहीं बेटा। 6 है सर। हाँ जी, सर 6। ये क्या प्लस साइन क्यों बन रहा है? स्क्रीन पे चल क्यों नहीं रहा है? कितने हैं? 6 सर। 6 sir, 6. सभी का ये आंसर है? So there are 6 links in total. 6 links हैं. Okay. There are 6 links. So there will be n is equivalent to 6. Yep. Number of 15 eye eye center. 15 eye centers. Out of 15 eye centers, how many eye centers can be located through visual inspection? 7. 7 sir. 6. Sorry, Ajay Bharti, 6. Why? फिर से कि नहीं अजय भारती जी? Yes, sir. कितने हो गए? कितने टर्निंग पेयर्स दिख रहे हैं आपको? Yes, 7. 7. कहाँ दिख रहा है? तो एक ये जहाँ Yes. जहाँ मैं हटा पे, दूसरा, इधर तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, 5वां, 6 and 7. ये दिख रहा है ना? yes, sir. अब इसने 3, 4 इसको कहा है, 5 इसको कहा है, 1, 2, 3, 1 इसको कहा है, 2, 3, ठीक है। इसने जो लिंक की नंबरिंग की इस तरह से की है, दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज होल कंप्लीट लिंक नंबर 3, ये 4 है, ये 5 है, एंड दिस इज द बल्क नंबर 6। तो कौन कौन से विजिबल है? I12, I12, I23, I23, I35, I35, I34, I34, 34, लिख दिया, I14, I14, I16, I16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी एक कहीं छूट गया हमसे, I56 छूट गया था, Yes sir. I56. So the next step is you are drawing a circle. अभी इधर मत देखना बेटा, दिख रहा है लेकिन इस पे कंसंट्रेट मत करो। So you are drawing a circle, और उस सर्कल पे आपको कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं? जितने की नंबर ऑफ लिंक्स हैं। There are 6 links. 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is 1, 2. विजुअल इंस्पेक्शन 1 से 2 को कनेक्ट कर दिया, जो इसमें ब्लू लाइन से दिख रही है। 2, 3 ये वाला 2 to 3 कनेक्ट कर दिया। देन 3, 4 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन 1, 4 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया। फिर 3, 5 3 को 5 से कनेक्ट कर दिया। 3, 4 ये तो हम कनेक्ट कर चुके हैं। फिर कौन सा बचा? ये वाला 5, 6 5 और 6 को कनेक्ट कर दिया। I16 1 और 6 को कनेक्ट कर दिया। ओके, सो देखो इसमें नंबर ऑफ आई सेंटर्स आपने भी बताया 15 में से
विजुअल इंस्पेक्शन से आपने कितने लोकेट कर लिए हैं? 7. 7. ठीक है. ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फिगर 1 2 3 4 1 2 3 4 and we connect 1 2 3, it is this figure 1 2 3 4 is split into two triangles, and 1 3 is the common side for both the triangles. This for the first triangle 1 2 3, the sides are 1 2 2 3. Where is 1 2? This is 1 2, this is 2 3. Okay, so if there is a third eye center, it will be on the same straight line. इस तरह से. Okay, the another triangle is 3 4 1. The sides are 3 4. Where is 3 4? This is 3 4. This is 1 4. So if there is the third eye center known as I13, it will be on the same straight line. ये जहां इंटरसेक्ट किया, इसके और इसके इंटरसेक्शन से आपका I13 डिसाइड हो गया. दिस इज I13. सो आपने 7 + 1 8 आई सेंटर्स अभी तक लोकेट कर लिए. अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाइए. आपको दिया हुआ द क्रैंक इज रोटेटिंग. The crank is rotating at 100 radians per second in clockwise direction. Therefore, length of OA भी दिया हुआ है. Length of OA भी दिया हुआ है. Let's see. Yeah, 100 millimeter दिया हुआ है. Length of OA is known to you. Therefore, you can find out the velocity of point A with respect to O. और चूंकि O1 is fixed point, therefore it can be also written as velocity of A will be R into omega 100 by 1000 मीटर में आ गया into 100. कितना बचा? 10 meters. 10 meter per second. ठीक है. You know the velocity of the point A. अब जब आप सेंटर I13 को देखते हो बेटा, जब आप सेंटर I13 को देखते हो, किस देखो यहाँ पे 3 लाइन है, इसलिए मैंने पहले बता दिया. जब आपने I13 को लोकेट किया, आपने इस लाइन को यूज किया और इस लाइन को यूज किया. ओके, नाउ दिस लाइन, द आई सेंटर I13, isn't it covering the extreme ends of the link number 3? Yes, sir. जब ये एक्सट्रीम एंड्स को कवर कर रहा है, then I can say that whole of the complete link 3 at this instant is rotating with respect to I center I13. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So I'll be using the relationship that is velocity of point A divided by the distance I13A. I13A is equivalent to velocity of C divided by I13C. चाहे इस रेशियो को ले लो या इस रेशियो को ले लो, दोनों रेशियो क्या दिखा रहे हैं? Basically it is equivalent to nothing but the angular velocity of the link number 3. Yes, sir. Right now you are having the velocity of the point A, and you need to find out the velocity of C. Therefore, velocity of C will be velocity of A divided by distance I13A into I13C. You will get the velocity of point C, isn't it? मिल जाएगा. आपसे पूछा क्या? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट E. आपसे ये पूछा है, आपसे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E पूछा हुआ और कुछ नहीं पूछा हुआ है. नो, अब देखो, एक आई सेंटर और लोकेट कर सकते थे, लेकिन देखो इसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये भी तो कर सकते थे ना. मैं जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि आपको इसको कर रहे हो क्या कोई फायदा होता है. If you connect 2 to 4, if you connect 2 to 4, it will be I24. ये जो आपका फिगर है 1 2 3 4, it is splitting this figure into two triangles. पहला एक ट्रायंगल हो गया 2 3 4 और दूसरा ट्रायंगल हो गया 1 2 4. पहले ट्रायंगल की बात करते हैं 2 3 4. The sides are 2 3 and 3 4. Where is 2 3? This is 2 3 and this is 3 4. So if there is a third eye center, it will be on the same straight line. और दूसरा ट्रायंगल क्या बना? 1 2 4
द साइड्स आर 1 2 1 4. 1 2 कहाँ है? 1 2 एंड कौन सा था? 1 4. 1 1 4 4. 1 2 एंड 1 4, यानी कि इफ देयर इज अ थर्ड आई सेंटर, वो इन दोनों को कनेक्ट करोगे इस तरीके से, तो इस जगह पे मिला आपको। ये जो आपको आई सेंटर मिला, ये वाला जो आई सेंटर मिला आपको, दिस इज द सेंटर I24, लेकिन इसका कोई फायदा दिख रहा है आपको? कोई फायदा है कि किसी भी लिंक को कवर कर रहा है, एक्सट्रीम एंड्स को? नहीं कर रहा ना? हाँ, नहीं कर रहा, इसलिए इसने, ऑथर ने भी इसको लोकेट नहीं किया है, और ना ही इसने कहा कि 15 आई सेंटर लोकेट करो। अगर 15 आई सेंटर लोकेट करना होता तो इसको कर देता। इसीलिए कई बार आप जो है ना, बनाने से पहले, टाइम वेस्ट करने से पहले जस्ट एक रफ में देख लो कि ये सेंटर वाकई में मेरे काम का है, ये काम का नहीं है, therefore why should I go for this center? ओके, मैं भी यहां से मिटा देता हूं, why should I go for this center? ओके, अब वो क्या किया, वो नीचे वाले फिगर में आ गया, 1 to 5 को ज्वाइन किया, 1 to 5 को ज्वाइन किया तो क्या हुआ? कौन सा फिगर इसने लिया है? इसने ये फिगर पूरा लिया है, देखो इस चीज को लिया है। ये जितना मैं आपको हरा करके दिखा रहा हूं, ओके। Now when he's joining 1 to 5, the figure 1 3 5 6 is splitted into two triangles and 1 5 being the common side for both the triangles. यही हो रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो, let's talk about the first triangle 1 5 6. The sides are 1 6 5 6. Where is 1 6? This is 1 6, and where is 5 6? 5 6 कहाँ पे है? 5 6 मेरे को दिख नहीं रहा, कहाँ है यार? ये 1 6 है, ये 5 6 है, ये this is 5 6, this is 5 6 है. So if there is the third eye center known as I16, it will be on the extension of this line. Clear? Yes, sir. Now the second figure, that is 135. The second figure, that is 135. Okay. The sides are 1 3 and 3 5. Where is 1 3? This is 1 3. And where is 3 5? This is the 3 5. So if there is a third eye center, it will be on the line joining these two centers. मैंने और खराब कर दिया लाइन बना करके. This is 3 5 and this is 1 3. इनको आपने जोड़ दिया और चाहो तो ऊपर की ओर एक्सटेंड कर दो, क्योंकि शुरू में आपको नहीं पता होगा until unless you are aware of the solution. So if there is a third eye center, आप क्या देख रहे हो? ये वाली लाइन जो है इसके साथ इंटरसेक्ट इस जगह कर रही है, therefore this becomes the center I15. Now is the center I15 giving you any help? No, sir. क्यों? मुझे दे रही है, मुझे तो लग रहा है। देखो मुझे क्या चाहिए, सर I डी know की that- वेलोसिटी मिल जाएगी। बी की कैसे मिलेगी? बी की तो तब मिलेगी ना जब आपको, अगर आप I15 की बात करोगे तो I15 इज कवरिंग द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लिंक नंबर 5। I15 के रेस्पेक्ट में ये भी रोटेट कर रहा Yes, है sir. और Yes, ये sir. भी कर रहा है। लेकिन अभी आपके पास एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यू डोंट नो सर हमें वेलोसिटी ऑफ बी नहीं पता अभी। हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे? सर 1 3 से मिल जाएगी सर। सर रेशियो कैसे लोगे? सर VB डिवाइडेड बाय I13B। एक मिनट, जो आप बोलो मैं VB डिवाइडेड बाय I13B
3b is is equal to VC divided by I13C. बिल्कुल सही। यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी मिल जाएगा। देखो अब क्या हो रहा है कि ये लिंक, पहले मुझे मालूम था कि ये भी और ये पॉइंट भी इसके रेस्पेक्ट पे रोटेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या, जब आगे और आई सेंटर पता किया तो मालूम चला कि पॉइंट बी भी जो है इट इज आल्सो रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट आई सेंटर I13। मेरे को यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी मिल गया। नाउ आई कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट डी। क्यों? क्योंकि I135 जो है सेंटर ऑफ रोटेशन, इट इज कवरिंग द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक 5। सो कैन आई राइट velocity of B divided by I15B is equivalent to velocity of D divided by I15D। लिख सकता हूं ना? Yes, sir. The moment I write it, I get velocity of point D is equivalent to velocity of point B divided by I15B multiplied by I15D। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी मिल गया मेरे को। ये डी है। लेकिन मेरा एम क्या है? माय एम इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ई। वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ई, इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करूं? अब देखो इसने कोई और आई से, हाँ सर ये I16 और इससे फाइंड कर लेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ D अपॉन I16D इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ E अपॉन I16C। चलो जी, मेरा जन्म स्वार्थ हुआ, आपको समझ में आ गया। डेफिनेटली इट्स अ बेल क्रैंक लीवर। It's a bell crank lever, simply just like your drafter. It is this end as well as this end will always rotate with this as a eye center. तो आपने जो कहा बेटा एकदम सही कहा। Don't take it otherwise। मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ, किसी को लगता है कि मैं sarcastic हूँ, लेकिन मैं sarcastic नहीं हूँ। मैं खुशी में भी मैं कई बार sarcasm झलकता है, but that is not the case। आपने एकदम सही कहा बेटा। Once I know the velocity of point D, I know that the point D as well as the point B, since they are on the bell crank lever, they are rotating with respect to I16. Therefore, I will write velocity of D divided by I16D is equivalent to velocity of point E divided by I16E. Therefore, velocity of point E will be equivalent to velocity of D divided by I16D multiplied by I16E. You will get the velocity of the point E. अब देख रहे हो ना कि आपको ये हर जगह पे आपके ये डिस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये तो हमेशा स्केल चूज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ये जो है डायग्राम है ऊपर वाला, दिस डायग्राम इज नथिंग बट द कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को आप बनाते समय आपको स्केल इस हिसाब से चूज करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब बनाने लगो उसके बाद मालूम चला कि आपका आंसर शीट से बाहर जा रहा है सॉल्यूशन स्पेस। फिर आप मुझे एक अलग से नोट लिखोगे, सर उसकी फोटो कॉपी, उसकी फोटो इमेज खींच के भेजते हो, सर मैंने किया था लेकिन वो ड्राइंग टेबल पे चला गया। So still any doubt? अब प्रॉब्लम तो इसमें कई तरीके के हो सकते हैं। प्रॉब्लम कई तरीके के हो सकते हैं। आप चाहो जितनी मर्जी बार करते रहो उसे, but the concept is not going to change. Neither is going to change, नहीं कुछ इसमें नया और ऐड होने वाला है। So is it okay? Yes, sir. सर Any query from anybody? सर हाँ जी सर। सर इसमें सर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। एक मिनट, कुछ सवाल पूछने से पहले ना अपना नाम बता दिया करो ताकि मैं आपको आपके नाम से एड्रेस कर सकूं। हाँ बोलिए। सर अमर भारद्वाज।
अमर भारद्वाज। यस सर। हाँ जी, बोलिए भारद्वाज सर। सर इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम अगर मोबाइल पर है, मतलब क्वेश्चन अगर मोबाइल पर है तो उसको सर सीट में कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम स्केल चूज करके बनाएंगे। तो सर जैसे ये एंगल वेंगल इसके एसी के जो एंगल वेंगल कैसे पता चलेंगे सर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कैसे बनेगा सीट पे सर? यार अगर मैंने आपको ये इमेज दे दी, ठीक है, यस सर। मैंने आपको ये इमेज दे दी थी, ठीक है, मुझे इसे ही बनाना है, ठीक है। मैं चाहे यस सर। मैं इसे चाहे किसी भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, चाहे मोबाइल पे देखूँ, लैपटॉप पे देखूँ, डेस्कटॉप पे देखूँ, ठीक है। मुझे करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाने के लिए करना क्या है मुझे? मुझे मालूम है मेरे पास 3 सेंटर्स हैं, ठीक है। पहला सेंटर मैंने लिया, इसको O1 माना, ठीक है। दूसरा सेंटर O2, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 300 ऐसे है, 200 ऐसे है। इसके 200 नीचे आकर के, या एक काम करो, एक लाइन आपने यहाँ पे हल्की सी लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया, 300 mm बाद यहाँ ड्रॉ कर लिया, 400 mm बाद यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बहुत हल्की लाइन होगी जो कि आप बाद में इरेज कर सको। अब मुझे मालूम है O2 इज एट ए डिस्टेंस, O2 and O3 are in line, but O2 is at a distance 200 millimeter below O1. If 200 millimeter below ये हो गया, तो मेरा आ गया, ये हो गया O2 हो गया, this becomes O3 हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से 60 डिग्री लेना है, 60 डिग्री लिया और क्रैंक OA बना दिया, जिस भी लेंथ का दिया था। स्केल चूज किया, अगर आपने 100 mm है तो मान लो आप इसको 1 सेंटीमीटर से, आप कह रहे हो लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट डिस्टेंस इक्वल टू 100 mm, तो 1 सेंटीमीटर लंबा आपने लाइन बना दिया इस तरह से, विच विल रिप्रेजेंट ए। ओके, नाउ यू नीड टू ड्रॉ AC। AC की लेंथ क्या है? 700 मिलीमीटर, एज पर स्केल इट विल बी 7 सेंटीमीटर। अब अपना कंपास लीजिए, पेंसिल लगाइए, उसमें टाइट कीजिए, उसके नीडल को यहाँ पे रखिए, 7 सेंटीमीटर आपने उसमें डिस्टेंस भरा हुआ है, जस्ट मार्क एन आर्क ओवर हियर, ठीक है। द डिस्टेंस O3C इज नोन टू यू। O3C कहाँ दिया हुआ? हाँ, ये दिया हुआ है 200, ठीक है। टेक अ डिस्टेंस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एज पर स्केल इन योर कंपास, पुट प्लेस द नीडल ओवर हियर, ड्रॉ एन आर्क ओवर हियर। बन गया आपका ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, ठीक है। BC का डिस्टेंस दिया हुआ है 200 mm, यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे ये चीज आ गई, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस अब सर। अब बेल क्रैंक लीवर कैसे बनाना है? पहले मैं बनाऊँ आपको बेल क्रैंक लीवर इस तरह से, जैसे इसने डिजाइन दिया वो इस तरह से नहीं बनाना है, बस इस तरह से L शेप में बनाना है। लेकिन ये D पॉइंट कैसे आएगा? अब आपको B मालूम चल गया है, ठीक है। गो फॉर द डिस्टेंस BD। वेयर इज BD दे रखा है कहीं पे? BD 150 दिया हुआ है। 150 mm का 150 मतलब 1.5 सेंटीमीटर कंपास में भरिए, निडल यहाँ प्लेस कीजिए, एक आर्क ऐसे बनाइए, ओके। और O2D दिया होगा, O2D 200 दिया हुआ, यानी कि 2 सेंटीमीटर का हो गया। कंपास में डिस्टेंस लीजिए 2 सेंटीमीटर का, निडल यहाँ प्लेस कीजिए, आर्क यहाँ बनाइए, ये बन गया आपका। B को D से कनेक्ट कर दिए, ये बन गया। अब यहाँ से राइट एंगल पे O2E इरेक्ट कर दीजिए। O2E कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर एक लाइन इसके परपेंडिकुलर इरेक्ट कर दीजिए, बन गया आपका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। बन गया कि यस नहीं? सर। यस सर। यस सर। सर अरे यार, लोग तो आज के जमाने में फोटो देख करके सारा डुप्लीकेसी कर लेते हैं। आपके पास तो डायमेंशन दिया हुआ है। हाँ, कौन सा पूछ रहे थे, बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि जैसे ये जो जैसे सब्जेक्ट है, शुभ नाम अपना, शुभ नाम बताइए, गुड नेम। सर माय नेम इज ओम शिव। हाँ ओम जी, बोलिए। सर हम ये कह रहे हैं कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आए, जैसे गेट वगैरह में, तो सर वहाँ तो सर वहाँ कॉम्पिटिटिव में गेट टाइप में, ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो गेट की कोचिंग होती है ना, मैं अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं गेट की कोचिंग नहीं करा सकता हूँ। देखो, जो गेट की कोचिंग है, या जो आप 12th 11th 12th में जो कोचिंग करते हो, आपको शॉर्टकट्स बताते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बट इंजीनियरिंग इज नॉट अ शॉर्टकट। दो द एंट्रेंस टू एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इज बेस्ड ऑन शॉर्टकट्स,
स्पीड पे बेसिकली ऑन इट्स बेस्ड ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। लेकिन गेट के एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा कि आपसे कोई 2 या 5 नंबर वहां बनाने को आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पे इस तरह के सवाल आएंगे नहीं। वहां जो सवाल आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में दैट विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट, दैट विल ओके बी, सर, ठीक है, इस तरह से गेट में नहीं आ सकते हैं। ओके। एनीथिंग एल्स और एनी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सेलरेशन एनालिसिस करा दूंगा, उसके बाद आई विल कम बैक टू द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आप उनके साथ लैब वाले के साथ 2 घंटे रहते हो, मुझे 1 घंटा मिलता है, तो उनका प्रेशर मेरे पे ज्यादा है कि सर अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी यस सर। I will be taking the acceleration analysis. I hope relative velocity method आपको याद रहेगा उस समय, क्योंकि कभी भी जब आप acceleration analysis करोगे तो सबसे पहले आपको velocity analysis करनी पड़ेगी, क्योंकि dv by dt is acceleration. ओके, इसीलिए जब तक v नहीं पता है तब तक उसका differentiate कैसे करोगे? क्लियर? यस यस सर। अच्छा चलो, मैं आपसे एकदम बड़ा जनरल सवाल पूछता हूँ, हाई टाइड कब आता है और हाई टाइड आने के पीछे रीजन क्या होता है? सर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सर। मून। आप कहते हो सर। दिस इज प्लेनेट अर्थ, दिस इज मून, दिस इज सन, तीनों एक लाइन में आ गए। यस सर। यस सर। फुल इस मून वजह डे से या फिर न्यू मून डे। क्या बेटा? फुल मून डे? जब यस हाँ, तो मैंने कौन सा बेटा चांद इस तरह से बनाया है? मेरा भी तो चांद पूरा ही है। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। आप यही कहते हो ना नॉर्मली? हम आप यही कहते हो एकदम सर। सही, जो आपको पढ़ाया गया वही आप कहते हो। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है। Coriolis component of acceleration. ये सिर्फ इंजीनियर ही बोल सकता है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है और कहाँ होता है? ये हमेशा होता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना है। टिल नाउ जो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड में अभी तक जो आपने वेलोसिटी फाइंड किया, आपने हमेशा फाइंड किया वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट व्हिच वाज ट्रीटेड एज ए स्टेशनरी पॉइंट। यस सर। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है ये भी आया वेलोसिटी से, लेकिन कैसे आया है? इट इज कमिंग in the sense that velocity of a point which is moving with respect to some point which is also moving. अब ये चीज आप जो मैंने अभी कहा वो आपको समझ में नहीं आएगा। अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ इज रोटेटिंग और नॉट अबाउट इट्स एक्सिस? यस सर। Yes, यस sir. Yes, sir. यस सर। इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना, डिस्प्यूट करके फायदा भी कुछ नहीं है। अर्थ इज रोटेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। ओके, आपने अर्थ पे कोई एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया और वो पॉइंट जो है आपका सागर में है, ठीक है? टेक इट अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, जहां मर्जी आपको जो भी ओशियन पसंद है उसमें वो पॉइंट जो आपने आइडेंटिफाई किया वो वहां पे है। नाउ द वाटर बॉडी दैट इज द सी वाटर, इट्स मूविंग, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। यस सर। ओशियन में करंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी बह रहा है इसीलिए ना। यस सर। यस सर। लेकिन जो अर्थ पे जो आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया था वो पॉइंट भी तो अर्थ के साथ साथ रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भले बहुत धीरे हो रहा है, मुझे आपको इसका मुझे और आपको Yes, इसका sir. एहसास नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं वाटर बॉडी में कोई एक वाटर का पार्टिकल ले लेता, मैं फिर कहता the velocity of that water particle with respect to the point which was taken as a reference point on the earth,
and that reference point is also rotating. ठीक है, तो उसके वजह से जो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता है, that is known as the Coriolis component of acceleration, and that is also responsible for the formation of tides. Clear? Yes, sir. ठीक है, so being a mechanical engineer, हाई टाइड के लिए एक और रीजन होता है Coriolis component of acceleration. ठीक है, लेकिन किसी अनपढ़ के सामने मत बोल देना, नहीं तो कहेगा वो क्या होता है, and it will be difficult for you to make him understand. Yes, sir. But being a mechanical engineer, you should also know that one more component is apart from the gravitational pull of sun and moon on the water body. It's also the Coriolis component is also responsible for the formation of tides. Okay. अब हम मिलेंगे आपसे कल, ठीक है, एक्सेलरेशन एनालिसिस पे. Still any doubt? सोच लो, मैं 2 मिनट के लिए अपना माइक्रोफोन म्यूट कर रहा हूँ.